Hello students. So in the previous video, we had discussed the partnership form of organization, what is partnership, the features of partnership, merits, demerits, types of partners and types of partnership. Today we will be discussing next topic of this form, that is minor as a partner. In the types of partners, you have seen one type was not full-fledged partners. Not full-fledged partners had 5 types of different partners. One of them was minor partner. Now minor partner is something different from other partners, because minor partner is someone who is a minor. Minor means his age is less than 18 years. So this such a person who is not eligible to enter into a contract, as our act says, as our law says, that till a person, a child attains his majority, मतलब जब तक वो 18 years का नहीं हो जाता, he cannot enter into any kind of contract. वो कोई contract sign नहीं कर सकता. In case he did so, that contract will be termed as invalid, void. But here in Partnership Act we have one a facility is given that if other partners can have the consent, means if all the partners want, they can allow a minor to enter into the partnership. Now here the rights of the minor partners are different from other partners' rights. Now today we will discuss what are they. So these are the rights of a minor partner. First is share only profits. A minor partner will only share the profits in the business. Means if there is any loss in the business, then that loss will not be taken off. A minor partner will not bear any kind of loss, because he is a minor, he is still growing, he doesn't have any other income, so he will not be eligible to pay for your losses. So this is a very important right of a minor partner, that if a partner is minor, means he is below the age of 18 years, then he will only share the profit. Means if the business is in profit, that profit will be distributed to him in the whatever ratio has been already decided. But if there is loss, then that loss will be distributed among the other partners, but it won't be distributed to a minor partner. Next is inspect books of accounts. Like any other partner, even a minor partner can look into the books of accounts. Means whatever records have been maintained by the business, a minor can go through them. A minor can inspect them. He can see what the business is doing, where the money is coming from, where the money is going, everything he can inspect. And third is file suit. Means if he is he's not, suppose the other partners are not giving him his share, so a minor partner, he can file the partnership firm or any of the partners in case something wrong is being done to him. Means if a minor partner he feels that something wrong is done to him through the partners, or the firm is not giving him his share of profit, then he can sue them in the court. So these 3 rights a minor partner has. And what are his liability? Responsibility क्या है उसकी, liability क्या है, limited है. Means he will only pay to that extent in which he has invested. जितना investment उसने किया है इस business firm में, उसी तक उसकी लाइबिलिटी है. अगर एक्स्ट्रा अमाउंट लॉस का होता है, ही वोंट बी पे. जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता है, वो लॉस शेयर करेगा ही नहीं, तो उसकी लाइबिलिटी भी कितनी होगी, लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड नहीं होगी. मतलब जितना भी लॉस होगा उसके हिस्से से उतना ही लॉस आएगा जितना कि वो पैसा लेके एंटर हुआ है. क्योंकि माइनर पार्टनर जब आता है एक पार्टनरशिप फर्म में, तो वो कैपिटल लेकर ही आता है. जितनी कैपिटल वो लेकर आता है, तब वहां उस कैपिटल तक ही उसकी लाइबिलिटी होगी, एक्स्ट्रा वो कुछ भी पे नहीं करेगा. So these are the features of a minor partner. These are the rights and this is liability. अब इसमें एक पॉइंट आप और पढ़ेंगे कि जब एक माइनर मेजर बन जाता है, मीन्स सपोज देयर इज अ माइनर हु इज, उसका बर्थडे आने वाला है, वो 18 इयर्स का होने वाला है. नाउ अब वो जब 18 इयर्स का कंप्लीट हो जाएगा, ही वोंट बी अ माइनर एनीमोर, वो माइनर नहीं रहेगा, ही विल बी अ मेजर, वो बड़ा हो जाएगा, अडल्ट हो जाएगा. तो अब उसके राइट्स भी चेंज हो जाएंगे. नाउ देयर आर 2 कंडीशंस ऑल्सो. एक कंडीशन ये है कि वो अपनी उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना चाहता है, और दूसरा वो उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहता. इन केस वो कंटिन्यू करना चाहता है,
ही हैज टू गिव इन दिस इन रिटन इन बाय वो उसको नोटिस देना पड़ेगा विद इन 6 months। सपोज उसका आज बर्थडे है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको ये नोटिस देना पड़ेगा टू द फर्म कि वो आगे कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं चाहता। इसमें 2 केसेस बन जाएंगे, अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता। इन केस वो नहीं करना चाहता कंटिन्यू, वो उसकी यहाँ पे खत्म हो रही है, तो जिस भी डेट को उसने नोटिस दिया है 6 महीने के अंदर अंदर, उस डेट तक वो एक माइनर पार्टनर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। मतलब ये सारे जो भी राइट्स हैं ये उसको दिए जाएंगे। ही विल बी ट्रीटेड एज अ माइनर पार्टनर टिल ही गिव्स द नोटिस दैट ही इज नॉट कंटिन्यूइंग द पार्टनरशिप। अब दूसरा केस क्या है कि अगर वो पार्टनरशिप कंटिन्यू करना चाहता है, मीन्स ही वांट्स टू बी अ पार्टनर इन दिस फर्म आगे भी। अब आगे बिकॉज वो कंटिन्यू करना चाहता है लेकिन अब वो एक माइनर की तरह कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, नाउ ही इज अ मेजर। तो अब जो ये राइट्स उसको मिल रहे थे, जो फायदे उसको मिल रहे थे, अब वो फायदे वहां नहीं मिलेंगे। मतलब यहाँ पे ये फायदा चेंज हो जाएगा, अब वो प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी शेयर करेगा। नाउ ही इज नॉट अ माइनर एनीमोर, तो अब वो मेजर हो गया है, तो अब वो शेयर सिर्फ प्रॉफिट नहीं करेगा, लॉस भी शेयर करेगा। ये तो हर पार्टनर कर ही सकता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये भी हर पार्टनर कर सकता है। मेन जो इसको 2 एडवांटेजेस मिल रहे थे, प्रॉफिट लॉस शेयर नहीं करने वाले वो इससे ले जाएगा, और जो यहाँ पे लायबिलिटीज की लिमिटेड थी वो अनलिमिटेड हो जाएगी। तो इन 2 पॉइंट्स में जो है वो चेंज आएगा। जब एक माइनर मेजर बन जाता है और वो कंटिन्यू करना चाहता है, तो अब वो लॉस भी शेयर करेगा और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी। सो दीज 2 चेंजेस विल कम इफ ही wants to continue the partnership after attaining majority। तो ये माइनर का एक थोड़ा सा आपको बुक में दिया हुआ है, थोड़ा लेंदी वे में दिया हुआ है। मैंने आपको जितना कराया है उतना ही सफिशिएंट है। यू जस्ट हैव टू नो who is a minor partner and what are his rights being a minor and after attaining majority। तो ये डिफरेंस बहुत इजी है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि माइनर पार्टनर एक ऐसा पार्टनर है जो कि 18 ईयर्स से छोटा है, उसको क्या क्या फायदे मिलते हैं। देखो ये दोनों चीज जो है ये तो सबके साथ ही होती हैं, तो यू कैन रिमेम्बर कि ये जो बाकी जैसे बाकी पार्टनर्स बुक्स देख सकते हैं, फाइल कर सकते हैं जरूर, ये भी कर सकता है। तो 2 एडवांटेजेस को मिल रहा है, तो ये मिल रहा है कि वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता है और लायबिलिटी उसकी लिमिटेड होती है, और जैसे ही वो मेजॉरिटी अटेन करता है, अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो ये दोनों फायदे उससे छीन लिए जाते हैं। अब वो लॉस भी शेयर करेगा और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। और अगर वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर नोटिस देना पड़ेगा। जब तक वो नोटिस नहीं देता, फॉर एग्जाम्पल उसने 5 महीने बाद नोटिस दिया, तो जो 5 महीने वो एक हमारा पार्टनर बन के रहा हो, तो वो मेजर गया था, लेकिन हम उसको माइनर की तरह ही ट्रीट करेंगे। मतलब उन 5 महीनों में भी उसको अगर लॉस कोई होता है तो वो शेयर नहीं करेगा, उसको हम माइनर ही मानेंगे। ठीक है, सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। इट इज वेरी इजी ऑल्सो। तो इसमें आपको सिर्फ इतना समझना है। ये आप सोच रहे होंगे कि बाकी पार्टनर्स हमने डिटेल में नहीं पढ़े, यही क्यों पढ़ा? क्योंकि बाकी जो है वो सिंपल है, ये थोड़ा एक हटके है। बिकॉज हमने जैसे पढ़ा एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे एक माइनर अगर पार्टनर बनता है तो वो कैसे दूसरों से अलग है, इसके लिए हमने ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा है। तो आई थिंक दिस इज इजी इनफ, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। इसके बाद आपके पार्टनरशिप में 2 टॉपिक रह जाते हैं, दो भी क्या, एक ही है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है कि आप इसको पढ़ें। अब जब आप ये पढ़ने लगेंगे, सबसे पहले आप दोबारा से रिकॉल कीजिएगा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ माइनर पार्टनर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, सो जस्ट go through it and now you have performed good in your first weekly। बहुत satisfactory तो नहीं रहा, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया है, कुछ लोगों ने अच्छा नहीं किया। आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल सब्जेक्ट्स, मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। अगर ओवरऑल रिजल्ट हम देखें तो थोड़ा सा आप लोग अभी और थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, आई नो कि स्टार्टिंग है, अभी आपको कॉम्बेट समझ में भी थोड़ा सा कम आ रहा होगा, प्लस लॉकडाउन है, हम इंटरेक्शन भी नहीं हो पा रहा है इतना अच्छे से, लेकिन स्टिल you have to work harder because time ऐसा है कि we cannot help it। अगर बुक्स नहीं खरीदी हैं तो again I'm saying please बुक ले लीजिए और continue your studies। Good luck।